ای چلان پہ تو کافی ہم سیفٹی کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں, کنسرنز ہیں, کچھ کرا بھی جا رہا ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دیز مین ہولز؟ اب دیکھیں میں ان کے بچے کے والد کا میں سن رہا تھا, بہت دکھ میں تھے, غم میں تھے. انہوں نے کہا کہ میرا بچہ تو چلا گیا, لیکن انہوں نے کہا میرا نمبر میں آپ دے دیں سب کو, اور جس کے بھی علاقے میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے میں لگواؤں گا گٹر کا ڈھکن. اب یہ مجھے بتائیں انتظامیہ کے منہ پر یا جو بھی ہے تماچا نہیں ہے. اچھا وقاص باقر نے میں جوائن کیا ہے, وقاص سے ذرا جانتے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ اس رپورٹ سے متعلق بھی جو کے ایم سی نے بنائی ہے, اور ابھی کراچی کی ضلع انتظامیہ کیا کری ہے, میئر کراچی کیا بات ہوئی ہے, وہاں گئے کوئی انہوں نے کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا, بتائیے وقاص. جی بالکل, نیپا چورنگی کے اس حادثے کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ بلیم گیم ہمارے یہاں زیادہ ہو رہا ہے. ایک سانحہ ہوا, اس سانحے کی سدباب کیا جاتا, آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوشش کی جاتی, اس کی جانب کہیں کوئی پیش رفت نہیں ہے. گزشتہ روز شب میئر کراچی مرتضی وہاب نے جن افسران کو معطل کیا ان میں سے بیشتر کا تعلق براہ راست اس واقعے سے متعلق نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ لوکیشن اور جگہ دکھاؤں کہ ہم یہ سب جو نیپا چورنگی کا واقعہ ہے, یہ یہاں پر یہ وہ مین ہول ہے جہاں پر وہ بچہ جو ہے جہاں گر کر جہاں بھاگ ہوا. اب یہ پوری ایک مین سیوریج لائن جا رہی ہے, یہاں تک اس کی کھدائی ہوئی. اب صورتحال آپ دیکھیں کہ جب یہ اس کو بچے کو تلاش کے لیے مین ہول کی کھدائی کی گئی, اس کی وہ کی گئی ہے, اب اس کو دوبارہ اس کو ریفل نہیں کیا گیا ہے. یہاں لوگوں کی آمد و رفت پھر جاری ہے, طلبہ و طالبات جاتے ہیں, بچے بڑے بوڑھے سب آ رہے جا رہے ہیں, پھر یہ صورتحال چل رہی ہے. یہ ویسے حیرانی کی بات ہے کہ کارڈن آف کر کے حادثے کے بعد بھی یہ حال ہے کہ کہیں کارڈن آف نہیں کیا ہوا, یعنی کہ ابھی اور آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہے آپ کو بلیم گیم میں نظر آئیں. مختار کار کو معطل کیا کہ براہ راست اس کے اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. دوسرا, سیاسی جماعتوں اور حکومت سے زیادہ سوشل ریسپانسبلٹی آپ دیکھیں کہ یہ بلڈنگ جو یہاں پر رہائشی اور دفاتر ہیں, یہ ایک بہت بڑا سپر اسٹور ہے, ہزاروں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں. کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا کہ وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ٹول فری نمبر ہے اس کو کال کر کے بتاتا کہ بھائی یہ مین ہول کھلا ہوا ہے, اس کو کال کرے. ہم سب بھی باعتبار مجموعی ذمہ داری, حکومت کی اپنی جگہ ذمہ داری اپنی جگہ, لیکن کیا ہم نے سب نے اپنے کام کیے یہاں سے. اچھا وقاص آپ بتائیے گا, وہاں کے بی آر ٹی کا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, ذرا گھمائیے کیمرہ اور بتائیں کہ بی آر ٹی, میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا, ان کا کام ہو رہا ہے یہاں. نیپا چورنگی کے مین روڈ, نیپا چورنگی کا مین روڈ ہے اور یہ فلائی اوور ہے. اس فلائی اوور کے نیچے جو سینٹر میڈین ہے یہاں پر بی آر ٹی کا کام ہو رہا ہے. اس جو مین ہول کھلنے جو گڑا ٹوٹنے سے بی آر ٹی کا براہ راست تعلق نہیں ہے. تاہم سی سی ٹی وی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ جو یہاں سے رات گئے ڈمپر آئے گئے ان سے جو ہے یہ وہ گرا. اب معاملہ صرف دو تین چیزوں کا ہے, بی آر ٹی کی ذمہ داری ہو, کے ایم سی کا مسئلہ ہو, ضلع انتظامیہ کی ہو, یہ پولیس کا وہ ہو, یہ تمام کے تمام حکومت کے ہی ادارے ہیں, اور حکومت بنیادی طور پر اس تمام تر صورتحال کو بہتر کرنے کی ذمہ دار تھی. وہ پھر اس میں کسی کا بھی بی آر ٹی کا شاپنگ سینٹر, یہ جو اسٹور تھا یہ اسٹور کھل گیا, اسٹور کھل چکا ہے, شروع ہو رہی ہے سیل پرچیز. نہیں, ابھی اسٹور یہ دوبارہ کھلا نہیں ہے, لیکن اسٹور انتظامیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو یہاں پر اسٹور کی جو لوکل مینجمنٹ تھی انہوں نے کیا کام کیا. روز آتے ہوں گے, اپنی بائک پارک کرتے ہوں گے, گاڑی پارک کرتے ہوں گے. لیتی ہے ٹاؤن ایڈمنسٹریشن پراپرٹی فیس لیتی ہے, یونین کونسل یونین کمیٹیز کو. اس وقت جب حادثہ ہو گیا مجھے یہ بتائیں وقاص, ایک بات بتائیں, اب آپ نے بھی انالائز کیا, ہم سب ہی انالائز کر رہے ہیں اس کو نا, ہم بار بار دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج, یہ جو آ رہی ہے فوٹیج بڑی دلخراش ہے. یہ کیا اس وقت ایسا ہو سکتا تھا کہ بچہ, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے امکانات تھے کہ اگر فوری طور پر رش کیا جاتا, کیونکہ نیچے نالا اتنا بہاؤ نہیں تھا اس کا, اگر فوری طور پر کوئی چلا جاتا, اتر جاتا نیچے, تو شاید بچہ بچ سکتا تھا. آپ نے کیسے انالائز کیا اس کو؟ میں اس کو دیکھیں جو جگہ ہے نا, اور جس طرح بھی پانی کا اس کا سیوریج لائن کا فلو ہے, اس کی بنیاد پر اپنے جتنی, مجھے بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز کو نہیں جانتا, لیکن ہمارے یہاں ریسکیو کے اداروں کے پاس نہ وہ افرادی قوت ہے, نہ مشینری ہے, نہ قوت فیصلہ ہے. پہلے مرحلے میں ہمارے یہاں ریسکیو کے ادارے یا متعلقہ وہ ادارے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لینینسی سے کام لیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گا. جب یہ معاملہ چونکہ میڈیا پر آیا اور قومی سطح کا بن گیا, تو اب اس کی ساری چیزیں تلاش کی جا رہی ہیں. ورنہ اگر
पहले 2 घंटे में ये कोशिशें की जाती तो बच्चे की जो को फौरी तौर पे वहां से रिकवर लेकिन बात ये है कि कुछ भी रेस्क्यू की आप बात कर ले, बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती थी, तो जरूरी था कि ये वाकया होता ही नहीं, ये सानिया पेश ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल गटर के ढक्कन की बात करो या जो मैं प्रोटेक्शन की नेट की बात कर रही हूँ, होना ही नहीं चाहिए ऐसा हादसा। उसके बाद आप चाहे दुनिया के ट्रक ले आएंगे, ले क्या बच्चे को बचा नहीं पाओगे। एक बार कोई गया वो बच नहीं सकता, ये समझिए। लेकिन नादिया, इसमें रेस्क्यू में मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें इम्कानात थे कि अगर फौरी तौर पर, देखिए रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर अगर 1 मिनट में पहुंच जाते, 2 मिनट में, 3 मिनट में पहुंच जाते, तो फौरन गटर में उतर के बच्चे को शायद बचा सकते। इतनी जल्दी आपको ये लगता है कि कुछ मिनटों में हमारे यहाँ रेस्क्यू वाले कहीं पहुंच सकते हैं? यही बात है ना, सवाल ये है। तर्जुमान सिंध हुकूमत, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सानिया होना ही नहीं चाहिए था, इतनी प्रोटेक्शन हो कि इस तरह से किसी के साथ कभी ना हो। जी नादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि ये जिम्मेदारी तो बहरहाल कितने भी इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कैसे ये आपने जब ये सुना तो आपको कैसा लगा कि ये गुलशन बिल्कुल इलाका ऐसा जहां से लोग जाते हैं आते हैं, शॉपिंग सेंटर है, उसके सामने गटर का ढक्कन नहीं है और बच्चा गिर गया, कैसा लगा आपको? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, और मैं खुद क्योंकि 2 छोटे बच्चों का बाप हूँ जिनकी एज तकरीबन ये इब्राहिम के आसपास ही है, तो मुझे भी इतनी तकलीफ़ है और मेरे भी जो बाल हैं वो खौफ से खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि इनके वालिदैन के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और देखें, ऑलरेडी डे 1 से जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि नो मैटर किस इदारे की जिम्मेदारी हो, जाहिर सी बात है एंड में गवर्नमेंट का ही काम है इंश्योर करना पब्लिक सेफ्टी। और देखें, अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल पेश नहीं आना चाहिए था, इसकी कोई सफाई नहीं है, और कुछ भी हम बोले, कुछ भी हम करें, उससे ये एक मासूम बच्चे की जान तो अब आगे क्या होगा वहाँ? तो अब तो इतनी तैयारी है कि कम से कम 100 बंदा तो वहाँ गिर सकता है आराम से, क्योंकि ओपन है। अब तो बहुत और बुरी खबरें आ सकती हैं, खुदा न खास्ता। ये तो एक इतना सा गटर था जो आपने देख लिया उसने क्या किया है, और अब जो इतना जमीन खुली है वो कब तक रहेगी? उसको रिपेयर कौन करेगा ये बताएं, वो भी किसका काम है या उसमें भी टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, देखें आज जिस तरह आप दुरुस्त फरमा रही है कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब देखिए, मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी कल जाके आप पता होगा कि जाके खुद माफ़ी मांगी है जाके, और माना है कि उनकी भी गफलत है, कोताही है, और उनकी भी नाकामियाँ हैं। पर अब जाहिर सी बात है ये ऊपर पार्टी लीडरशिप CM मुराद अली शाह तक चला गया। अब इंश्योर यही हमने करना है, और ये इशू हमें पहले माजी में भी फेस किया है कि क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद इन द प्रोविंस, मतलब टाउन के अलग दायरे इख्तियार है, फिर उसके अलावा KMC के अलग दायरे इख्तियार है, फिर वाटर सीवरेज बोर्ड का अलग दायरे इख्तियार है। तो इन चीज़ को हम कंसोलिडेट करने हैं, और ऑलरेडी इस वाक़े से पहले हम इन्हीं कोशिशों में लगे हैं। लेकिन सर इसका प्लीज बताएं कि इसकी रिपेयर कौन करेगा? पता है, एक हर मिनट जो है ना मौत की तरफ लेके जा रहा है। सवाल ये कि ये बताएं जी, अभी भी वहां बहुत सारे बच्चे गुजर रहे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग गुजर रहे होंगे, हर मिनट जो है भारी है। मुझे बताएं इसकी रिपेयर कौन करेगा और कब होगी? बस जी बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मुराद अली शाह साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, और यही कहा था कि इट डजंट मैटर कि कौन से इदारे के अंडर आता है। सर ये परसों जो वाकया हुआ उसके बाद, अभी आप सब मेरे ख्याल है आपने फुटेज नहीं देखी, परसों जो वाकया हुआ ना उसके बाद क्या हुआ, खुदाई हुई जी, और वो खुदाई करने के बाद एक तो गटर था छोटा सा, अब वो पूरा ही एक गटर नुमा बहुत बड़ा स्पेस बन गया है, ओपन जगह है, फेंसेस या लाइट नहीं है, चीज नहीं लगी, कोई कॉर्डन ऑफ नहीं उसको किया हुआ। मैं वो बता रही हूँ कि हर लम्हा खतरनाक है, कोई भी इस वक्त कोई भी बुरी खबर आ सकती है। आप बताएं उसकी रिपेयर कौन करेगा, उसको भरेगा कौन, उसको रिपेयर कब होगी? जब तक नहीं होता कुछ उसको इलाके को इसमें किसी तकरीर का आप हवाला देते हैं, आप बस बताएं कि ये कब भरेगा और कब इसकी रिपेयर होगी? जी देखिए, इसमें जाहिर सी बात है नोटिस में है मेयर के भी, क्योंकि मेयर आपको पता है MD है वाटर सीवरेज बोर्ड के भी, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ही, वही जाके इंशाल्लाह इसको रिपेयर करेगा, एंड होपफुली दिस विल बी डन बिफोर कोई और इस तरह अफसोसनाक वाकया। तो यहाँ बाब वार्ड लगा दे तब तक, व्हिच इज व्हेन, कब तक ये रिपेयर हो जाएगा? ये तो कुछ घंटों का ही काम है, कब तक हो सकता है सर?
जी मेरे पास इस वक्त कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, बट चले रिपेयर तो देखें जब तक हो जाएगा, लेकिन या एटलीस्ट आप मैसेज पहुंचवा दें कि उसको एटलीस्ट इलाके को या उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देना, ताकि वहां कोई लोग बेध्यानी में ही ना चला जाए। जी ठीक है, कोई जी, लाइट बिल्कुल हो आप सही वहां फरमा रहे उसको कॉर्डन ऑफ करके, ताकि कोई वो होते हैं लोग नहीं देख रहे होते, नहीं देख रहे कोई होते, बुजुर्ग बड़ी हो, परेशानी कोई में चल रहा नाबीना होता है कोई शख्स हो, इंसान। कोई बच्चा हो, एकदम माँ बाप का हाथ छुड़ा के बच्चे भाग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जी बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं। आई विल इंश्योर कि आई विल जी, आल्सो और टॉक। अच्छा नादिर भाई, मुझे बताएं कि मेरे- आगे गटर के ढक्कन का होना क्या है पूरे कराची में, क्योंकि देखिए अब तो सेंसिटाइज हो गया ना मामला। अनब्रेकेबल गटर के ढक्कन। हाँ। देखिए अब हमें सिर्फ ढक्कन नहीं चाहिए, हमें अनब्रेकेबल ढक्कन चाहिए, हमें मैश चाहिए टू प्रोटेक्ट उस पूरी जगह को, कि अगर टूटता है, कुछ चोरी होता है, तो उसके नीचे एक डबल प्रोटेक्शन हो। इस पर क्या सर, डिस्कस किया जा रहा ये है डिमांड है हमारी सिंध सबकी। गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, लेकिन तमाम इदारे अब बैठेंगे, अब कोई इस तरह की कोई चीज़ निकालेंगे प्लास्टिक के या तो ढक्कन हो अनब्रेकेबल टाइप के, बिकॉज मोस्टली जो ढक्कन हम लगाते भी हैं उनमें क्योंकि सरिया होता है, तो जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो आके उनको सीमेंट का जो हिस्सा है वो तोड़ के जो सरिया है निकाल के वो बेच देते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें पेश आ रहा है। अब इस तरह की कोई हमने जाहिर सी बात है ढक्कन लाने होंगे कि या तो वो प्लास्टिक के या फाइबर के बने हो और बिल्कुल। इतने हैवी लोड उठा सकेंगे, जैसे इस वाक़े में भी टैंकर इसके ऊपर से डंपर गुजरा था तो वो ढक्कन जो था वो टूट गया था। अब तो खैर फाइबर की भी और प्लास्टिक की भी ऐसी इतनी स्ट्रेंथ की टेक्नोलॉजी आ बिल्कुल, गई बिल्कुल, कि बिल्कुल। हैवी लोड से भी वो ना टूटे। ऑब्वियसली ये एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट हमारे मिनिस्टर हैं वो आई एम श्योर बैठेंगे तमाम इदारों के साथ और बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और लेंगे भी आई एम श्योर, बिकॉज इस तरह के वाक़े हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंडर भी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर फिर जिस शिद्दत से गिल्ट और फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है तो हम भी नहीं चाहते और हैं। नादिर भाई, ये इस जरा चीज़ ये से भी एक इसका मसला हल करें, इख्तियारात का जो ये टकराव है ना, हमेशा हमारे शो पर भी बहुत से अपने इश्यूज को रेज किया, उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता। हम टाउन नाजमीन को भी लेते हैं, फिर मेयर कराची के नुमाइंदे भी होते हैं, फिर आप भी होते हैं, अक्सर वो पासिंग द बक वाली बात और चलती है। हमने उसका हल कैसे? उसमें हल एक हमने भी दिया था कि प्लीज एक वेबसाइट बना दें जिसमें हर जो बंदे का ना काम एक्सप्लेन्ड हो, हर काम की का कौन जिम्मेदार है उसकी पिक्चर लगा दें, उसका डेजिग्नेशन दिखा दें, ताकि वो उनको पता हो कि जी मैं जो सैलरी ले रहा हूँ इस काम की ले रहा हूँ, और हमें भी पता हो कि जिम्मेदार कौन बिल्कुल है ना। बेहतर नहीं है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। और देखें ये चीज़ ऑलरेडी आपकी तजवीज़ से बेहतर पहले ही सीएम साहब, मेयर साहब, इन सब ने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है कि एक वन विंडो ऑपरेशन होगा, जिसका प्लान होगा कि उसी जगह पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर उसके सामने एक गटर का ढक्कन खुला हुआ है तो डिपार्टमेंटल स्टोर के भी इंतज़ामिया को आगाही देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमारे स्टोर के सामने ये ढक्कन इस वक्त टूटा हुआ, कोई इस तरह का हादसा पेश आ सकता है। और अगर किसी भी इंडिविजुअल दुकान कॉरपोरेशन को कोई भी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक वन विंडो, एक ऑफिस या एक फ़ोन नंबर या एक हेल्पलाइन हम बना के देंगे, जिसमें वो फिर उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट भी कर सके। और जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर उसके ऊपर फिर अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होगी और फिर एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सा गवर्नमेंट इंडिविजुअल है जिसके बिल्कुल सर, हमारा होता है ना चैनल है, इस शो का होस्ट कौन है, मेरी फोटो आ जाती है, जोहेब की फोटो आ जाएगी, हमारे कैमरे के पीछे कौन है, डायरेक्टर कौन है, सबका ना एक स्पेसिफाइड है। ऐसे ही पता चल जाए कि फला एरिया के कि ये जो ढक्कन के इंचार्ज हैं मेंटेनेंस चीजें, ये कौन शख्स कर रहा है। जब उसको पता होगा ना कि मेरी फोटो है और सब मुझे देख रहे हैं, मेरा काम है और सबको पता है मेरा काम है, तब वो गफलत नहीं करेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है और ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में हम फंस वी लव आवर सिटी एंड वी वांट इट टू बी सेफ। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ।